خبر آپ کو دیں، کویت کے وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ السالم الصباح کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد نے GHQ کا دورہ کیا۔ کویت کے اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ السالم الصباح کی قیادت میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق کویت کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل خالد درساد الشریان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ملکوں کی جانب سے ادارہ جاتی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کویتی وفد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل صلاحیتوں اور خدمات کو بھی خوب سراہا۔ ملاقات علاقائی سلامتی اور استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور فوجی تعطل کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان طاہر اندرابی نے کہا، پاکستان سمجھتا ہے کہ موجودہ علاقائی چیلنجز کا پائیدار حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے سلسلے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 24 اگست کو ایران کا دورہ کیا، جس میں ایرانی قیادت سے کشیدگی کے خاتمے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ریاستی سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے لیے افغان عبوری حکومت کو ٹھوس ثبوت فراہم کرنا ہوں گے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر رہی ہے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی جانب سے کرانہ ہلز پر حملے سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان کے اسٹریٹجک اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں اور پاکستان اپنے اسٹریٹجک اثاثوں کے تحفظ اور سلامتی کے معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے، اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آتے صدقی سے جاں بحق ہونے والے 14 بچوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ 14 خاندانوں میں خوشیاں لانے والے معصوم نومولودوں کی موت پر ہر طرف اداسی اور غم کا راج ہے۔ راولپنڈی میں ایک بچی کے غم سے نڈھال والدین کا کہنا تھا کہ لاکھ انکوائریاں ہو جائیں، بہت سو کو سزائیں مل جائیں، مگر ہمارے آنگن کا پھول نہیں کھل سکے گا۔ ایک بچے کی والدہ نے کہا، 4 سال بعد آنگن میں پھول کھلا، اب مٹی تلے چلا گیا۔ راولپنڈی میں ایک بچے کے والد نے فریاد کرتے ہوئے کہا، کیا شکوہ کروں، اللہ کی رضا پر ماتھا ٹیک دیا۔ راولپنڈی کے علاقے شمس آباد کے رہائشی نے سب سے بڑے اسپتال کا کچا چٹھا کھول دیا۔ والد کا کہنا تھا کہ منتوں مرادوں سے بیٹی ملی، 3 دن بعد رخصت ہو گئی، غم کا پہاڑ ہے، کاٹے نہیں کٹتا۔ بچی کے والد کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے اسپتال بہت چھوٹا ہے، سہولیات تو درکنار، علاج بھی مناسب نہیں ملتا، حکومت کا اربوں روپیہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں اس قوم پر رحم کریں، جو چلتا ہے چلنے دیں۔ تو ناظرین، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت کے ارکان نے ڈاکٹر مہیش کمار کی قیادت میں پیمز ہسپتال کا دورہ کیا اور جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ قائمہ کمیٹی کے ارکان نے انتظامیہ پر شدید تنقید کی اور آتے صدقے کی وجوہات پر سوالات اٹھا دیے۔ سربراہ قائمہ کمیٹی صحت مہیش کمار نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر صحت نے بیان دیا کہ پرانے AC سے سپارک ہوا، کوئی کہہ رہا ہے آکسیجن سلنڈر پھٹا، کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آگ کیسے لگی۔ کہا گیا کہ وارڈ میں موجود AC کافی عرصے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم تجربہ کار ڈاکٹرز پر مشتمل کمیٹی بنا رہے ہیں جو واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیمز اسپتال کے واقعے نے پوری قوم کو غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ واقعات ہوتے رہتے ہیں، حفاظتی اقدامات کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا، PTM کی مشترکہ حکومت نااہلی اور کرپشن کی انتہا پر ہے۔ موجودہ دور میں گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ 40 سال سے اقتدار میں بیٹھے آپس میں نورا کشتی کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM نااہل اور کرپٹ ہیں۔ پیمز اسپتال میں کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے، ڈاکٹرز اور عملے کو ٹریننگ دینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔
पंजाब हुकूमत ने सूबे के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के गिर्द फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब के अहकाम जारी कर दिए। तर्जुमान महकमे हाउसिंग पंजाब के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव के पेशगी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक पहले मरहले में सूबे भर के 57 सरकारी अस्पतालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई, जहां जरूरत के मुताबिक फायर हाइड्रेंट्स नस्ब किए जाएंगे। RHC, THQ, DHQ और दीगर बड़े सरकारी अस्पतालों के अतराफ फायर हाइड्रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाएगा। तमाम वासा एजेंसियों को अहम मकामात की निशानदही और फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब का टास्क दे दिया गया। बड़े सरकारी अस्पतालों के करीब पहले से मौजूद फायर हाइड्रेंट्स की दस्तयाबी और फालियत का भी फौरी जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान ने बताया मौसर फायर फाइटिंग के लिए अस्पतालों के तरफ फायर हाइड्रेंट निजाम को मजबूत बनाया जाएगा, जबकि जरूरत के मुताबिक नए फायर हाइड्रेंट्स भी नस्ब किए जाएंगे। तर्जुमान महकमे हाउसिंग के मुताबिक रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका महकमों को मुकम्मल मुआवनत फराहम की जा रही है, जबकि महकमे हाउसिंग और मुतल्लिका इदारे अस्पतालों के तरफ फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब में भी मुआवनत करेंगे। तर्जुमान ने कहा इस्लामाबाद में आतिशबाजी के अफसोसनाक वाक़े में कीमती और मासूम इंसानी जानों के नुकसान के पेश नज़र पंजाब में बड़े सरकारी अस्पतालों के लिए आग से बचाव के इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की KP और बलूचिस्तान में फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ताज़ा कार्रवाइयों में 11 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराए ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस के KP के इलाकों जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू जबकि बलूचिस्तान के जिला खुजार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बन्नू में फितनल खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 5 खारिज जहन्नुम वासिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सफीर को उनकी सफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी और पाक सऊदी ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए उनकी नुमाया खिदमत को सराहा। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने खादिम हुरमैन शरीफ शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार को भी तारीफ की। सऊदी सफीर ने कहा कि सफारती जिम्मेदारियों के दौरान मिलने वाली गर्मजोशी और ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान में क़याम एक यादगार और खुशगवार तजुर्बा रहा। उन्होंने कहा कि पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपने ज़ाती अज़्म का इआदा करते हैं। और नाज़रीन, खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फाइनल कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के उमूर पर तफसीली मुशावरत हुई। इजलास में सेनेटर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने शिरकत की है। नौमंतखब स्पीकर चौधरी तारिक फारूक, डिप्टी स्पीकर अहमद रजा कादरी और टेक्नोक्रेट नशस्त से मुंतखब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की नई हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए, जबकि आइंदा की पार्लिमानी हिकमत अमली और हुकूमत साजी के उमूर पर भी गौर किया गया। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के आइंदा लाहे अमल को हतमी शक्ल देने पर गौर किया गया। नई काबीना की तश्कील, हुकूमती तरजीहात, गुड गवर्नेंस और हुकूमती उमूर को बेहतर करने के इक़दामात पर भी मुशावरत हुई। वाज़ेह रहे कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब 28 अगस्त को होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA जोनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया और खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी। इजलास में वज़ीर दाखिला ने FIA जोनल ऑफिस लाहौर की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया और मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद तेज करने पर भी जोर दिया। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को कानून
की गिरफ्त में लाया जाएगा और जुराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। उनका कहना था जुराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन आपका काम है और इस संबंध में नताइज नजर आने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि FIA के अफसरान और अमले को हर मुमकिन सहूलियात और वसाइल फराहम किए जा रहे हैं और मजीद भी फराहम किए जाएंगे। इजलास में मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर मौजूद पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला किया गया, जबकि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल कैमरे नस्ब करने की असूली मंजूरी भी दी गई। शिकायत के इंदराज के लिए पाक ID ऐप की खिदमत हासिल करने का असूली फैसला भी इजलास में किया गया। इजलास के दौरान डायरेक्टर FIA जोनल ऑफिस लाहौर ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त और दफ्तर की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में DG FIA, डायरेक्टर FIA जोनल ऑफिस लाहौर और तमाम सर्कल इंचार्जेस ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिंकियांग में चीन की मारूफ टायर एंड वेस्टर्न डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर आमद पुरतपाक खैर मकदम किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वर्क्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिल्क प्रोसेसिंग का डिजिटल मुआयना किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में लाइव स्टॉक में बेहतरी और फरोख के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित होने लगे हैं। देही खवातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के स्पेशल प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी है। मवेशियों को फरबा करके मीट प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मिल्क और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, फलस्तीन में इसराइली गैर कानूनी आबादकारी बदस्तूर जारी है। जंगबंदी के बाद 1200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जंगबंदी बरकरार है तो हमले कैसे जारी हैं? पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा, गैर कानूनी आबादकारी, आबादकारों का तशद्दुद और जबरी बेदखली खत्म करना जरूरी है। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान मकबूजा इलाकों के इल्हाक को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि जंगी जुराइम और दीगर संगीन जुराइम के लिए जवाबदेही यकीनी बनाई जाए। पायदार अमन के लिए इसराइली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर है। फलस्तीनी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती गैर मुतसलसिल है। फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की जायज जदोजहद में साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब का मज़ीद कहना है कि खित्ते में पायदार अमन की वाहिद राह मुनसिफाना और जामे अमन है। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम 1967 से कबल की सरहद पर जरूरी है। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स शरीफ होना चाहिए। और नाज़रीन, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पर आपको बताएं कि दुखी में कोयला कान के अंदर गैस भरने से 3 कारकुन जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू के मुताबिक लाशें सिविल अस्पताल दुखी मुंतकिल कर दी गई हैं। मरने वालों में ईसा खान, सिराजुद्दीन और शमसुल्ला भी शामिल हैं। तो आपको बताएं कि दुखी में कोयला कान के अंदर गैस भरने से 3 कारकुन जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू के मुताबिक लाशें सिविल अस्पताल दुखी मुंतकिल कर दी गई। मरने वालों में ईसा खान, सिराजुद्दीन और शमसुल्ला शामिल हैं। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में DHQs, THQs समेत महकमा के ज़ेर इंतजाम तमाम अस्पतालों में आतिशबाज़ी के वाक़यात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में सेक्रेटरी सेहत व आबादी, स्पेशल सेक्रेटरी AS टेक्निकल और दीगर भी मौजूद थे। इजलास से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि आतिशबाज़ी के वाक़यात से बचाव के लिए मुनासिब हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएं। आग बुझाने वाले आलात का बाकायदगी से मुआयना और देखभाल यकीनी बनाई जाए। इन आलात के मुआयने और सर्विसिंग का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए। और नाज़रीन, दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उनके ख्याल में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई शदीद जख्मी हैं, लेकिन वो हलाक नहीं हुए। एक इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर हलाक हो चुके हैं, लेकिन अगर ऐसा है भी तो ईरानी हुकाम बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ईरानी हर मामले पर हतमी मंजूरी लेने के लिए सुप्रीम लीडर से दोबारा बात करने का जिक्र करते रहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा उन्हें यकीन है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिस्म के बाएं जानिब बहुत शदीद जख्मी हुए हैं।
वाज़ेह रहे कि 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद पहले दिन मुश्तबा खामनाई शहीद हुए थे। उस वाक़े के बाद से मुश्तबा खामनाई को अवामी सतह पर नहीं देखा गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका इक़्तिसादी दबाव से ईरान से अपने मक़ासिद हासिल नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अमेरिकी पाबंदियों और दबाव के बावजूद अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगा। नई अमेरिकी इक़्तिसादी पाबंदियों से निमटने के लिए इक़दामात तैयार हैं। अमेरिका जंग में मक़ासिद हासिल न कर सका, इक़्तिसादी दबाव में नाकाम हो गया। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि इक़्तिसादी दबाव के मुकाबले में ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हुकूमत और निजी शोबा मार्केट मुस्तहकम रखने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ईरानी सदर का मज़ीद कहना है कि मुश्किल हालात के बावजूद अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा है कि हालिया 40 रोज़ा जंग के बाद ईरान की तज़वीराती तवज्जो आबने हुर्मुज़ की जानिब मुंतकिल हो गई है और अब ये आबी गुज़रगाह ईरान की कौमी सलामती का मामला बन चुकी है। ग़रीबाबादी के मुताबिक ईरान और ओमान आबने हुर्मुज़ के वाहिद साहिली ममालिक हैं। हालिया जंगों से कबल आबने हुर्मुज़ के हवाले से कोई मसाइल नहीं थे, ताहम गुज़िश्ता 58 बरस से बहरी जहाज ओमानी हुदूद से गुजरते रहे, जिससे ईरान को नुमायां नुकसान पहुंचा। उन्होंने मजीद कहा कि ओमान के साथ तय पाने वाले मुआहदे का मतलब ये नहीं कि आबने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। आमदोरफ्त के मौजूदा रास्तों में तब्दीली जरूरी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि अबूरी इंतजाम के तहत खलीज फार्स में दाखिल होने वाले बहरी जहाज ईरानी हुदूद से गुजरेंगे, जबकि खलीज फार्स से बाहर जाने वाली बहरी ट्रैफिक ओमान की इलाकाई हुदूद से गुजरेगी। ग़रीबाबादी के मुताबिक अबूरी इंतजाम के तहत ईरान और ओमान को 30 से 60 रोज के अंदर मुस्तकिल बहरी रास्ते के हवाले से मुज़ाकरात करना होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आबने हुर्मुज़ के जुनूबी रास्ते को बंद रखने पर इत्तफाक हो गया है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस ने कहा है कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ फौरी नए हमलों का इरादा नहीं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस की रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए दबाव बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है। आबने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई और बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त में इजाफे से ईरान का दबाव कम हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका आबने हुर्मुज़ से ज़्यादा तेल आलमी मंडियों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। बहरी नाकाबंदी के बायस ईरान की तेल की बरामदात तकरीबन रुक गई हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि फिलहाल वाशिंगटन मुज़ाकरात की बजाय ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली का तारीखी प्लान पेश। पंजाब को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब बनाने की पेशकश। वज़ीर आला मरियम नवाज की नुमाइंदगी करते सूबाई वजीर आशिक करमानी ने फॉरेन इकोनॉमिक एंड ट्रेड कारपोरेशन सिम्पोजियम में शिरकत की। स्विंगयांग में हुकूमत पंजाब और अवामी जमहूरिया चीन के सूबा ग्वेसो हुकूमत के इश्तराक से बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नुमाइंदगी करते सूबाई वज़ीर आशिक करमानी ने फॉरेन इकोनॉमिक एंड ट्रेड कारपोरेशन सिम्पोजियम में शिरकत की है। ग्वांगयांग में हुकूमत पंजाब और अवामी जमहूरिया चीन के सूबा ग्वेसू हुकूमत के इश्तराक से बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आपको बताते चलें, पंजाब की तरक्की और खुशहाली का तारीखी प्लान पेश कर दिया गया। पंजाब को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब बनाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नुमाइंदगी करते सूबाई वज़ीर आशिक करमानी ने फॉरेन इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन सिम्पोजियम में शिरकत की। ग्वांगयांग में हुकूमत पंजाब और अवामी जमहूरिया चीन के सूबा ग्वेसो हुकूमत के इश्तराक से बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अभी खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के दौरे के लिए पाकिस्तान अंडर 19 टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान अंडर 19 टीम का दौरा इंग्लैंड 2 सितंबर से शुरू होगा, जहां कौमी जूनियर टीम अरेंडल कास्टल क्रिकेट ग्राउंड में वाहिद यूथ टेस्ट मैच खेलेगी, जबकि दौरे में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 यूथ वनडे मैचेस भी शामिल हैं। दाएं हाथ के बैटर फरहान यूसुफ को पाकिस्तान अंडर 19 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। फरहान यूसुफ ने गुज़िश्ता साल दिसंबर
में पाकिस्तान को ACC अंडर 19 एशिया कप का टाइटल जितवाने में क़यादत की थी। स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़िया, अब्दुल सुबहान, रिजवानुल्लाह और उमर ज़ेब शामिल हैं, जबकि स्पिन के शोबे में मोहम्मद हुज़ैफा और नक़ाब शफीक को शामिल किया गया। ऑलराउंडर में आलियान सुलेमान, अहमद हुसैन, जहांगीर बिलाल और हईम खान शामिल हैं। हमजा ज़हूर और अब्दुल कादिर को बतौर विकेट कीपर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, जबकि फरहान यूसुफ के अलावा उस्मान खान और हुसनैन अब्बास डार बतौर बैटर शामिल हैं। पाकिस्तान अंडर 19 स्क्वाड 30 अगस्त को लाहौर से इंग्लैंड रवाना होगा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 2 से 5 सितंबर तक टेस्ट मैच खेलेगी, जिसके बाद वनडे सीरीज 9, 12, 14 और 16 सितंबर को खेली जाएंगी। शाहिद अनवर पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हेड कोच होंगे, जबकि राव इफ्तिखार अंजुम फास्ट बॉलिंग कोच, ज़ुहैब खान स्पिन बॉलिंग कोच और हुमायूं फरहद फील्डिंग कोच की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि सीनियर खिलाड़ी को बाहर बिठाने में कोई बुराई नहीं, टीम के लिए जो बेहतर होगा वही प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा, टीम में कोई खिलाड़ी गैर अहम नहीं, बाज़ औक़ात किसी खिलाड़ी को एतमाद देने के लिए भी मौका दिया जाता है। बैटिंग के दौरान विकेटें गिरने के मसले पर कौमी कप्तान ने कहा, यह दुरुस्त है कि अच्छी पार्टनरशिप के बाद अचानक विकेटें गिर जाती हैं। टीम इस खामी को दूर करने की कोशिश कर रही है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि नया बैटर क्रीज पर आता है तो बैटर ही आउट हो जाता है। बाबर आजम ने कहा, लॉर्ड्स की पिच पर घास नजर आ रही है, इसलिए प्लेइंग 11 का हतमी फैसला हालात का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। देखिए, मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जो है वो 11 साइड की होती है। ये नहीं कि बॉलर्स अगर करेंगे 20 आउट तो बैट्समैनों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रन्स करें। लेकिन इसमें मेरा मानना ये है कि एज अ टीम परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ती है, स्पेशली इंग्लैंड में जो है वो पार्टनरशिप में खेलना पड़ता है। इवन आप बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, आपको अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ती है, अच्छी पार्टनरशिप में बॉलिंग करनी पड़ती है। उस पार्टनरशिप को जो है वो लॉन्ग लेके जाना पड़ता है, स्पेशली इन बैटिंग, क्योंकि अगर सेट बैट्समैन खेल रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा जो है वो इजी रहता है, लेकिन जब नया बैट्समैन आता है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए। तो पिच जो लग रही है वो बिल्कुल थोड़ी सी ग्रास लग रही है, लेकिन इंडियन फिर जैसे हम लीड्स में देख रहे थे, पहले 2 दिन घास था, उसके बाद फिर डिफरेंट पिच था, तो हम फाइनल। और नाज़रीन, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।